Let's move on. Assalamu alaikum everyone. कैसे हैं आप सब? Okay. The topic which we are going to discuss today is a very famous play, Hamlet. It was written by William Shakespeare and it's a tragic drama. And the subtopic which I am going to discuss with you people is the themes and sub-themes of the play Hamlet. Actually, guys, this topic was suggested to me that, ma'am, please cover this topic. There's some issue in this topic, and that's why I am going to talk about the themes of Hamlet. Let's start. Let's first talk about the biography of our writer. Our writer, a very famous Shakespeare, is also known as a poet of all ages. And I am going to talk about the biography of Shakespeare. They are saying that there is no exact date of William Shakespeare's birth, but it has been accepted that Shakespeare was born on April 1564, Stratford upon Avon in the Berkshire, England, and he never recorded attending university, but he was ever educated in Stratford at the King's New School of Free Grammar School. In 1582, he married Annie Hathaway and had three children with her. His work, whether it's a poem or play, was played all over the world and he was known as the greatest dramatist of all time. However, he himself is somewhat a mystery. कह रहे हैं कि शेक्सपियर को जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी कंफ्यूजिंग है डेट ऑफ बर्थ जो है कोई एग्जैक्ट जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बट इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड डेट ये कहा जाता है कि वो जो है 1564 में जो है वो अप्रैल में पैदा हुए थे एंड नेक्स्ट देयर इज़ अ प्लेस नेम वेयर ही बॉर्न एंड ही मैरिड विद होम Annie Hathaway and he had three children and he is very famous all over the world and that's why he is also best dramatist of all the time and he is also somewhat a mystery means a complex character. Then I am going to talk about the brief summary of the Hamlet. I hope you all are much clear with the summary of Hamlet. That what's the story in Hamlet. Hamlet we know that there is a king Hamlet है और उसके father की जो है वो recently जो है वो death हो गई है and this death was done by his own brother. उसके खुद के भाई ने उसका कत्ल किया था. Claudius name है and then he also married with the Gertrude. Gertrude who is which is the she is the mother of Hamlet जो कि Hamlet की mother है. Hamlet के father का कत्ल हुआ है एंड क्लॉडियस है उस बंदे का नाम जिसने उसका कत्ल किया था एंड देन जो है क्लॉडियस ने ये क्यों किया था उसने थ्रोनशिप लेने के लिए लीडरशिप लेने के लिए किया था एंड दिस फीलिंग ग्रोज टुगेदर और विद द बेट्रियल ऑफ द क्लॉडियस इज प्रूवन द रिवेंज इज वेल एंड द major theme is also the revenge and this single theme leads to the death of many other characters in the play as it's the tragedy or drama of the William Shakespeare so in the end we see that the stage is full of bloodshed जैसे कि विलियम शेक्सपियर के अदर प्लेज भी हैं हमने उथालो देखा है किंग लियर है और भी बहुत सारे प्लेज हैं विलियम शेक्सपियर के वेरी फेमस द विंटर्स टेल एंड द मिडसमर्स नाइट दैट मिडसमर्स नाइट इज समवट अ रोमांटिक ट्रेजेडी और जैसे कि हमने उथालो देखा था या फिर हेमलेट है तो इसमें जो है हमें एक चीज़ कॉमन नज़र आती है कि शेक्सपियर के एंड पर जो है उनका स्टेज जो है वो ब्लड शेड से फुल हो जाता है यानी बहुत ज़्यादा खून खराबा होता है इनकी ट्रेजेडीज़ में एंड पे to be or not to be. This is a very famous line. It's actually a soliloquy in this play Hamlet because this play is actually based on uncertainty. शक पे गैर यकीनियत पे जो है ये बहुत ज़्यादा प्ले जो है वो बेस कर रहा है और क्यों बेस कर रहा है बिकॉज उसे जो है हेमलेट को दिखाया जाता है कि उसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो डाउट है अपने चचा पर अपने अंकल क्लॉडियस पर कि उसने वाकई मेरे बाबा का कत्ल किया है घोस्ट को उसने जब देखा है तो वो उसके बाद से जब इसकी इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है एंड देन आफ्टर मैनी अदर सीन्स इसमें जो है हमें ये स्टेटमेंट नज़र आती है एक्चुअली में ये हेमलेट की हमें सॉलिलोक्वी दिखाई गई टू बी और नॉट टू बी जिसका मतलब ये है कि इट मीन्स वर्थ वाइल दैट समथिंग इट इज़ वर्दी और नॉट इट्स टू डू और नॉट टू डू मतलब करूँ ना करूँ ऐसे है या ऐसे नहीं है तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी जो है हमें इस प्ले के अंदर नज़र आती है Let's start our discussion. Revenge is actually the main theme of the story Hamlet and however many Hamlet itself has many several sub-themes like madness and loyalty and betrayal but the major one theme is revenge. Let's start our discussion.
Revenge. The very first theme or the very major theme of the play is revenge. Hamlet play is known as the widely as a tragic bloody revenge play, and how from here we can know that revenge itself is the most prominent theme of the play, and it can be seen clearly that the main motive of the events in the play is revenge, which leads to be the death of the other major characters. Hamlet, who come from three different families, feel that they need to be avenge the families of their own fathers, and as the head of their families have been killed, they have a willingness to take a revenge in order to bring back the honor of their families. For example, Prince Hamlet, he has eagerness to make his uncle, the new king of Denmark, pays the price of the poisoning his father and the former kings. रिवेंज जो है उन्होंने कहा है कि जो हमारा प्ले है इसका सबसे मेजर थीम है। मेजर थीम किस तरह से है कि हम देखते हैं कि जो है हमारे पास करेक्टर क्लॉडियस का जो है ही इज़ द इंटेगोनिस्ट ऑफ आवर प्ले एंड द प्रोटैगनिस्ट ऑफ आवर प्ले इज़ द हैमलेट हिमसेल्फ। हैमलेट हमारा प्रोटैगनिस्ट, और हैमलेट के फादर का जो है वो मर्डर हुआ है। किसने किया है? क्लॉडियस ने किया। तो क्लॉडियस ने अपने ब्रदर से जो है वो रिवेंज लिया था, इवेंज किया था कि वो थ्रोनशिप लेना चाहता था, वो लीडरशिप लेना चाहता था। दैट्स वाई जो है उसने रिवेंज लिया। और उसके बाद जो है हैमलेट का रिवेंज दिखाया गया है कि वो जो है अपने अंकल से रिवेंज लेने के लिए किस हद तक जाता है। वो मैडनेस का बहाना करता है, वो इस तरह अपना रूप चेंज करके करता है कि मैं इन ऑर्डर टू एट एवरी कॉस्ट मैं जो है यानी कि इस बात का जो है वो पता लगा लूँ कि आया कि वाकई उसने अंकल मेरे ने क्लॉडियस ने जो है मेरे फादर का कत्ल किया है। जो घोस्ट ने उसे इन्फॉर्मेशन दी थी वो वाकई उसने सही दी थी या नहीं दी थी। तो इसके अलावा जो है उसने गर्टरूड से भी शादी कर ली थी, क्लॉडियस ने जो है, जो कि हैमलेट की माँ है। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह ये एक सिंगल चीज़ जो है किस तरह जाके एंड पे तमाम कैरेक्टर्स की जो है वो जान ले लेती है। The second theme is also very most important is of the madness. The theme of madness is portrayed by the several characters in the play. Throughout the play, Hamlet pretends that he is mad. His madness is being questioned by people around him, although the truth is Hamlet just wants to make the Claudius suffers for his sin, killing him, Hamlet. And from the beginning, we came to know that the Hamlet is not insane, but he is really sad about his father's death and his mother remarriage until he takes a plan to kill her Claudius by pretending to be mad first. And meanwhile, after his father's death, Ophelia, he becomes mad and falls a great depression. She also thinks that about Hamlet, who changes towards her. She cannot the weight of her life anymore after the great loss, and her madness leads to her a suicide inside. कहते हैं कि मैडनेस का जो थीम दिखाया गया है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और डोमिनेट दिखाया गया है कि स्टार्ट से ही है। जो हम देखते हैं कि क्लॉडियस जो है उसने जब उसका वो जो है किंग बन जाता है डेनमार्क का, और उसने जो अपने ओन ब्रदर की जो है हैमलेट के फादर का जो है उसने मर्डर किया है, तो हैमलेट जो है उससे इस बात का इवेंज लेने के लिए मैड होने का जो है वो एक बहाना करता है, एक फेक जो है अपनी आइडेंटिटी बनाता है कि दैट आई हैव गॉन मैड, कि मैं जो है यानी कि पागल हो चुका हूँ। और देन जो है वो एक फेस्टिवल अरेंज करता है और वहाँ पर जो है कि वो सेम वो चीज़ें सोचता है कि जिस तरह घोस्ट ने उसे बताया कि इस तरह जो है उसके फादर को कत्ल किया गया, वो सेम वैसा ही सिनेरियो क्रिएट करता है कि वो देखता है कि अगर वाकई क्लॉडियस ने कत्ल किया है तो मेरे फादर का, तो वो ज़रूर इस चीज़ पे रिएक्शन देगा। और उसकी जो है ये अनसर्टेनिटी जो है वो सर्टनिटी में चेंज हो जाती है कि जब वो जो है क्लॉडियस वो उसका ड्रामा जो है उसने फेस्टिवल पे हैमलेट ने इन मेड सिचुएशन जो है क्रिएट किया होता है, तो वो जो है वो दरमियान में इसी छोड़ के उठकर चला जाता है। तो इस बात से जो है उसे यकीन हो जाता है हैमलेट को कि वाकई ये जो है इसने मेरे फादर का कत्ल किया। एंड ऑन द सेकंड डायमेंशन क्लॉडियस को भी इस बात का यकीन हो जाता है कि हैमलेट जो है इसने मेरे फादर, ये पागल वागल नहीं है, ये सिर्फ पागल होने का बहाना कर रहा है। तो इस तरह से जो है हम इसे दो डायमेंशन से ले सकते हैं कि दो करेक्टर्स जो हैं वो किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को देखा, किस तरह से फर्दर उन्होंने इसको परसीव किया। द थर्ड थीम इज़ लॉयलिटी। लॉयलिटी मीन्स टू बी लॉयल, वफादारी के साथ, फेथफुलनेस के साथ इसको हमेशा एसोशिएट किया जाता है। थ्रू देयर एक्ट्स एंड वर्ड्स वी कैन फाइंड आउट दैट द सेवरल कैरेक्टर्स हैव ग्रेट लॉयलिटी टू देयर फैमिलीज, स्पेशली टू देयर फादर्स। Hamlet, Vortimer's, Laertes, and are cases in the point. They are very loyal to their families until they are be able to take a revenge. Horatio also shows his loyalty and faithfulness towards Hamlet, while Rosentius and Gilstrons are in the other side. They give their loyalty towards Claudius. लॉयलिटी जो है कहते हैं कि हमने बहुत सारे करेक्टर्स जो है हम स्टोरी में देखते हैं जो कि अपने दूसरे पार्टनर के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा लॉयल दिखाए गए हैं। मोस्टली जो अपने बड़ों के साथ लॉयल दिखाए गए। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ हैमलेट, हैमलेट जो है वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा लव करता है और उसका इवेंट लेने के लिए वो सारी प्लानिंग करता है, और इस वजह से उसकी ये लॉयलिटी हमें नज़र आ रही है कि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा लॉयल था, लॉयलिटी दिखाई जा रही है। सेकेंड साइड पर जो है अगर हम लॉयलिटी की बात करें तो हमें लॉयलिटी दिखाई जा रही है होराशियो के करेक्टर में, हमें दिखाई जा रही है कि उसने भी जो है वो
हेमलेट के साथ लॉयल्टी दिखाई है। हेमलेट को किससे लॉयल्टी दिखाई गई है? उसके फादर के साथ दिखाई गई है। होरेशियो की लॉयल्टी दिखाई गई है, हेमलेट के साथ दिखाई गई है। और रोजेंशियस एंड गिल्स्ट्रॉन ये जो है ये एक्चुअली में थे तो उसके हेमलेट के दोस्त, लेकिन इनकी जो लॉयल्टी दिखाई गई है ये क्लॉडियस के साथ दिखाई गई है, क्योंकि वो बाद में क्लॉडियस के साथ मिल गए थे और क्लॉडियस के कहने पर उन्होंने ऐसा तमाम काम किया था। The very last theme is the betrayal. The theme of betrayal is shown clearly by several characters like Gertrude, Resintius, Gilstron, Claudius, and Polonius. Claudius betrays his own father, like King Hamlet, by poisoning him and taking his throne. While not too longer about the King Hamlet's death, Gertrude decides to marry Claudius, which makes him less disappointed with her. As far for Polonius, he betrays his own son's fate by sending him a spy to France in order to make sure that his son doesn't lie to him. And Resintius and Gilstron on the other side betray Hamlet by him being loyal to the Claudius. बेट्रायल का जो दिखाया गया है इसका मतलब है अनफेथफुलनेस। बेट्रियल मतलब धोखा देना, किसी वो एक करेक्टर जो है वो उसके जिसके साथ उसे लॉयल होना चाहिए था उसकी डिसलॉयलिटी को दिखाया जा रहा है। डिसलॉयलिटी किस तरह से दिखाई जा रही है? जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इफ वी टॉक अबाउट द गर्ट्रूड। गर्ट्रूड हु वाज गर्ट्रूड? गर्ट्रूड वाज द मदर ऑफ द हेमलेट। हेमलेट यानी कि उसने उसके फादर की डेथ के बाद फ़ौरन से ही उसने जो है क्लॉडियस से शादी कर ली थी। तो इस बात ने जो है हेमलेट को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया था कि मेरी मदर ने जो है ये बिल्कुल ठीक भी नहीं किया। और रोजेंशियस और जो उसका दूसरा दोस्त है गिल्स्ट्रन, ये जो हेमलेट के दोस्त है उन्हें हेमलेट से लॉयल्टी शो करनी चाहिए थी, बट दे वर misguided by Claudius and that's why they posed their loyalty towards Claudius instead of Hamlet. उन्होंने जो अपनी लॉयल्टी जो है वो क्लॉडियस के साथ शो कर दी, ना कि उन्हें हेमलेट के साथ अपनी दिखानी चाहिए थी लॉयल्टी। एंड इफ अनदर कैरेक्टर इफ टॉक ऑफ पोलोनियस, पोलोनियस की भी लॉयल्टी उन्होंने जो दिखाई गई, उसने जो बेट्रे किया है उसने अपने उन्होंने पोलोनियस के करेक्टर की बात की कि उसने अपने ओन सन के फेथ को जो है वो उसने बेट्रे किया है और उसके पीछे एक स्पाई जो है वो फ्रांस में भेज दिया था, ये पता करने के लिए आया कि मेरे बेटे ने जो मुझे बात बताई है वो सच है या नहीं है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह एक करेक्टर जो है वो अपनी अपनी लाइफ के अंदर इंटेंगल हमें दिखाया गया है, ट्रबल में दिखाया गया है कि किस तरह जो वो है एक करेक्टर जिसको लॉयल होना चाहिए था एक बंदे के साथ, वो उसी बंदे के साथ डिसलॉयलिटी उसकी दिखाई जा रही है। Let's conclude our discussion. In the end, we can say that Hamlet is one of the greatest drama of William Shakespeare. Hamlet is one of the greatest tragedy drama in regards to its prominent characters, its complex plot and themes, its fascinating dialogues, and its moral values. This drama is cruel, full of sorrow, and complex, yet not so fascinating. From here, we can understand that we must repay anyone evil for evil and but evil with the good. Living a life without committing everyday sins is impossible. Indeed, but as long as we can keep ourselves from doing evil things and if we learn to do our good things every day, our lives will be better. In the end जो है वो कहते हैं कि हम ये जो है एक हमारे लिए एक एज अ एग्जाम्पल के तौर पे मौजूद है हेमलेट। ये जो है विलियम शेक्सपियर ने ये जो हमें प्ले लिखा था, इससे हमें जो है इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरह उसने शेक्सपियर ने जो इसका कॉम्प्लेक्स प्ले जो है वो उसने क्रिएट किया, लेकिन फिर भी जो है ये हमें बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहा है। ऑल्दो ये फुल प्ले जो है सोरो है, एंड फिर हम जाके देखते हैं कि तमाम करेक्टर्स की जो है इनसे हेमलेट, क्लॉडियस, गर्ट्रूड, जितने भी बंदे हैं हम देखते हैं कि सब बंदों की जो है वो डेथ हो जाती है। ब्लड शेड हमें फुल नज़र आता है, जस्ट 2 करेक्टर्स बच जाते हैं एंड पे, तो वो फुल ब्लड शेड हमें नज़र आ जाता है। वो कहते हैं कि डजेंट मीन दैट यू आर अ ह्यूमन, यू कांट कमिट एनी बैड इवल थिंग। आप बैड इवल थिंग कर सकते हैं कमिट, बट इट डजेंट मीन दैट कि यू कैन नेवर कमिट एनी इवल थिंग, दैट्स इम्पॉसिबल। आप कभी भी कोई गलती ना करें, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, लेकिन गलती भी करें, लेकिन कहते हैं इतनी भी गलतियां ना करें कि आप जो है बिल्कुल इंटेंगल हो जाएं, फंस जाएं। अगर आप ऐसी बातें काम नहीं करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो आपकी लाइफ जो है वो बेटर हो जाएंगी। And in the end, I would like to say that if you people have not subscribed my channel, please subscribe it and press the button of bell icon so you may be able to get the notification at first of my any coming new video. Thank you very much, ladies and gentlemen, for your precious attention.